السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت یعنی ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ضلع نظام آباد کے مختلف مقامات پر ساوتری بائی پھولے کی جینتی کے موقع پر ان کے مجسمے پر عوامی نمائندے و حکام نے پیش کی گل عقیدت۔ تلنگانہ میں نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا تحفظ ہماری ترجیح۔ نو منتخب جماعت اسلامیہ صدر محمد اظہر الدین سے ہوئی ملاقات میں ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے کیا اظہار۔ تلنگانہ میں شہداء کو سہارا دے، انتخابات میں دیے گئے وعدے کو پورا کرے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی میں اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ ناراین گپتا نے پھر دوبارہ اپنی آواز اٹھائی۔ تلنگانہ میں 117 بلدیات کے انتخابات کے لیے 11 یا 20 جنوری تک انتخابی نوٹیفیکیشن جاری ہونے کا قوی امکان۔ سابق سی ایم KCR کی جانب سے اسمبلی میں PPT دیے جانے کی وجہ سے کانگریس قائدین نے شرکت نہیں کی۔ قانونی ساز اسمبلی میں سابق وزیر بالکنڈہ MLA پرشانت ریڈی کا اظہار۔ چاول کی طرح ہی دیگر فصلوں کے کسانوں کو مراعات دے، قانون ساز اسمبلی کے احاطے میں ریتو کمیشن سے CM ریونت ریڈی نے کیا اظہار۔ اس اجلاس میں ریتو کمیشن چیئرمین کودنڈا ریڈی، ممبر جی گنگا دھر نے کی شرکت۔ نظام ساگر نہر کے لیے 1500 کروڑ روپے مختص کرے، قانون ساز اسمبلی میں آرمول MLA P راکیش ریڈی نے کیا اظہار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ تلنگانہ میں نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا تحفظ ہماری ترجیح۔ نو منتخب جماعت اسلامی صدر محمد اظہر الدین سے ہوئی ملاقات میں ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے کیا اظہار۔ آج ریاستی مشیر محمد علی شبیر کی قیام گاہ پر جماعت اسلامیہ ہند تلنگانہ کے نو منتخب صدر محمد اظہر الدین نے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد اظہر الدین نے تنظیم کی جانب سے نیا سالانہ ڈائری پیش کی، جس کے بعد شبیر علی نے انہیں شال اور گلدستہ پیش کر کے تہنیت دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تلنگانہ کی موجودہ سیاسی و سماجی صورتحال پر مختصر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ محمد اظہر الدین نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے نفرت انگیز تقاریر پر قابو پانے کے لیے نئے قانون کے اعلان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس نوعیت کی قانون ساز کا مطالبہ جماعت اسلامی نے اکتوبر میں وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے دوران کیا تھا۔ انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھانے پر شبیر علی کا شکریہ ادا کیا، جس کے نتیجے میں اب نفرت انگیزی کے خلاف ٹھوس تجاویز سامنے آئی ہیں جو اقلیتی طبقات کے تحفظ میں مددگار ثابت ہوں گی۔ شبیر علی نے BJP قیادت والی NDA حکومت اور اس سے وابستہ میڈیا اداروں پر الزام عائد کیا کہ وہ عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے فرقہ وارانہ بیان کو فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت NGO، سول سوسائٹی تنظیموں اور دیگر متعلق فریقین کے ساتھ مل کر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی جامع ترقی کے حامی ہیں
اور چاہتے ہیں کہ ذات، مذہب یا سماجی حیثیت سے قطع نظر ریاست کی ترقی کا فائدہ ہر شہری کو مساوی طور پر حاصل ہو۔ جمعیت علماء نظام آباد کے زیر اہتمام مختلف دیہی علاقوں کے غربا میں گرم کپڑوں کی گئی تقسیم۔ جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کے زیر انتظام حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب قاسمی صدر جمعیت العلماء ضلع نظام آباد و جناب افضل الدین صاحب جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء ضلع نظام آباد کی نگرانی میں مختلف منڈلوں کے دیہاتوں میں غریب غربا کو موسم سرما کے لحاظ سے گرم لحاف بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ ایڈپلی منڈل کے ARPF کیمپ اور MSC فارم اور اسلام پورہ میں پروگرام انعقاد عمل میں لائے گئے و عمدہ کوالٹی کی بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر جمعیت علماء ایڈپلی منڈل کے ذمہ داران و مساجد کے ذمہ دار، جس میں قابل ذکر مولانا عاطف صاحب امام و خطیب مسجد ابوبکر، حافظ اسماعیل صاحب ذمہ دار ایڈپلی، حافظ عبدالقدوس صاحب معلم مدرسہ ایڈپلی، مفتی نذیر صاحب امام جامعہ مسجد ایڈپلی، حافظ نجم الدین صاحب امام مسجد MSC فارم، مولانا فرید صاحب امام مسجد، جناب محبوب صاحب صدر مسجد ARP کیمپ، جناب عبدالباری صاحب رکن کمیٹی، حافظ حسن صاحب امام مسجد بانا پلی، مولانا مشیر صاحب امام مسجد اسلام پورہ، جناب رضوان صاحب صدر مسجد، جناب فیروز صاحب رکن کمیٹی و دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر جمعیت علماء ضلع نظام آباد نے ان تمام معاونین کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس کام میں دام درہم سخن ساتھ دیا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بروز ہفتہ 3 جنوری 2026 جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے تحت ایک وفد غریب و مسکین لوگوں میں کمبل بلینکٹس تقسیم کرنے کے لیے ARP کیمپ پہنچا۔ ایک صاحب خیر کی جانب سے ذمہ دار بنایا گیا جمعیت علماء ضلع نظام آباد کو۔ اس سلسلے میں کمبلوں کی تقسیم کرنے کے لیے ARP کیمپ پہنچے۔ اس گروپ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کے بڑے بزرگ سب موجود ہیں، جس میں خاص طور سے ایڈپلی کے حافظ اسماعیل صاحب، مولانا عاطف ایوبی صاحب، مفتی نذیر صاحب، حافظ عبدالقدوس صاحب اور ARP کیمپ کے جناب محبوب صاحب صدر صاحب، مولانا فرید صاحب امام صاحب، جناب باری صاحب، اس کے علاوہ یہاں کے معززین بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صاحب خیر یہ تقسیم کرا رہے ہیں ان کو جزائے خیر عطا کرے، اور جو احباب یہاں وقت لگائے ہیں، اپنا سفر کرے ہیں، ان تمام احباب کو جزائے خیر عطا کرے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء ضلع نظام آباد کے تحت تقریباً 10 گاؤں میں بلینکٹ اور بیڈ شیٹ تقسیم کرنے کا طے کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ یہ کام کنٹینیو ہوتے رہیں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین کی میونسپل کمشنر سے ملاقات۔ بنا نل کنکشن بلوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا، بل معافی کا مطالبہ۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین وفد نے آج میونسپل کمشنر سے ملاقات کی اور انہیں ایک تحریری نمائندگی پیش کرتے ہوئے بتایا کہ غریب عوام جن گھروں میں نل کنکشن نہیں ہے، ان غریب عوام کو میونسپل کی جانب سے بھاری جرمانہ اور بل جاری کیے جا رہے ہیں۔ ایسے تمام بل اور بھاری جرمانوں کو رد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چند سال پہلے تلنگانہ ریاستی حکومت کی جانب سے غریب عوام کو 100-200 روپے میں مفت نل کنکشن اسکیم کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کے تحت درخواست داخل کرنے والے غریب عوام کو میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بنا نل کنکشن کے ہی بھاری بل اور جرمانے جاری کیے جا رہے ہیں۔ مجلس قائدین نے بتایا کہ ایسے درخواست گزاروں کے مکانوں میں نل کنکشن موجود نہیں ہے اور ان کے قریب ہی پائپ لائن ڈالی گئی۔ باوجود اس کے جن گھروں میں نل کنکشن موجود نہیں، ایسے گھروں پر بھی میونسپل کی جانب سے بل اور باقیہ جات جاری کیے جا رہے ہیں۔ مجلس قائدین نے جلد از جلد انکوائری کرتے ہوئے ایسے بلز کو رد کرنے کا مطالبہ کیا۔ مجلس قائدین کی مؤثر و کامیاب نمائندگی پر
म्यूनिसिपल कमिश्नर ने जोन AE को हिदायत दी है कि इंक्वायरी करते हुए इन्हें रिपोर्ट पेश करे। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने मजलिस कायदीन को बिना नल कनेक्शन के जारी बिल्स व जुर्मानों को रद्द करने का तयक़ुन दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल ने कहा कि शहर की अवाम बिलखुसूस ऐसे मकीनों को बिना नल कनेक्शन आ रहे बिल्स और जुर्माने के खुसूस में निजामाबाद मजलिस दफ्तर वाक़े अहमदपुरा कॉलोनी मजलिस कायदीन से राब्ता पैदा करने का मशवरा दिया है। ऐसी शिकायतों को मजलिस कायदीन म्युनिसिपल ओहदेदारों के जरिए हल करवाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इस मौके पर जिला सदर मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर्स रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसिन सरफराज, मोहम्मद खान और खलील अहमद, अजीज राही, अमर फारूक, शेख जाकिर, शेख गौस मौजूद थे। आज हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता कई रोज से जो टैप कनेक्शन के लिए लोग म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो लोग कलेक्शन के वास्ते आ रहे थे, तो वहाँ पर ये सामने आया कि एक एक जो छोटा घर है जो खुसूसन माइनॉरिटी एरिया स्लम एरियाज में कि एक घर पे 18,000 15,000 के बिल सामने लेके आ रहे। तो इसको हम तमाम एरिया वाइज देखने के बाद पता चला कि ये जो जिस टाइम पे जब भी 1 रुपया कनेक्शन या 100 रुपये कनेक्शन वाले लोग जब एप्लीकेशन दिए थे, हमारे BPL लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वाले वो एप्लीकेशन दिए, सो उनको पता नहीं है उनका कनेक्शन स्टार्ट हो गया। बहरहाल वो आज भी ऐसा महसूस हो रहा कि बाज़ जगह ऐसा भी है कि जहाँ पाइपलाइन भी नहीं है उनको 15-15 हज़ार रुपये बिल आ रहा। तो इस ज़िम्मन में हम कमिश्नर साहब को पूरा कंप्लीट बताएं। कमिश्नर साहब भी उसको तमाम फिर इंक्वायरी करते हुए देखेंगे। बोले हम अवाम से अपील दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने ऐसे कुछ भी कुछ इश्यूज आ रहे तो हमारे अपने MIM के तमाम जिम्मेदारों से आके मिलिए। ऐसा कि ये जो बहुत सारे घरों में जो नल कनेक्शन भी नहीं है उनको बिल आ जा रहा। बहरहाल ये चीज़ें कुछ इंक्वायरी करने के और इसको डीप में जाके देखने के, तो ऐसे लोग अपने घरों का बिल अदा ना कीजिए, ताकि तब इंक्वायरी AE लेवल जो भी है इंक्वायरी करे बाद उसको कमिश्नर साहब बज़ात खुद देखते हुए और उसको वो अकाउंट को चेक करते हुए उसको रेगुलर करेंगे बोल के हमें यकीन दिलाया। तो आप तमाम से दरख्वास्त है, जो लोगों के घर में पानी का नल कनेक्शन नहीं है जिसको बिल आ रहा है, वो लोग पैसे ना बने और इसके लिए वक्त लगेगा। यकीनन इंक्वायरी करते हुए आपके साथ इंसाफ हम रहेंगे और आपका हक अगर गैर ज़रूरी अगर कोई लेना चाह रहे, म्युनिसिपल लेना चाह रहे, तो हम आपके साथ दीवार बन के ठहरेंगे। बालकोंडा मंडल के कृष्णा वेनी हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को रोड सेफ्टी तकारीब के तहत सड़क हादसे के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़े कृष्णा विनी हाई स्कूल में रोड सेफ्टी फेस्टिवल का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को सड़क हादसे के बारे में शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 18 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद ही सड़क पर बाइक, कार व दीगर गाड़ियों को चलाते हुए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवानीन पर अमल आवारी करे। इन्होंने मज़ीद कहा कि नाबालिग अफराद की जानिब से गाड़ी चलाने की सूरत में इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करते हुए हर एक मोटरसाइकिल मालिकिन अपने सर पर हेलमेट लगाना चाहिए और गाड़ी से मुतालिक दस्तावेजात को अपने साथ रखने की ताकीद बादजा स्कूल के मैदान में तुलबा के साथ अहद करवाया। इस प्रोग्राम में स्कूल डायरेक्टर विघ्नेश्वर ए लक्ष्मण, प्रिंसिपल विजया किरण, कांस्टेबल मनोज कुमार के अलावा दीगर ने शिरकत की। गुज़िश्ता साल जुलाई से मिड डे मील वर्कर्स को वाजिब अदा बिलों की इजराई अमल में लाने के लिए 8 जनवरी को एक रोज़ा हड़ताल करने के AITUC कायदीन ने किया इजहार।
शहर के AITUC जिला दफ्तर में प्रेस मीट का इनकाद अमल में लाया गया। इस प्रेस मीट में AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया ने कहा कि रियासत तेलंगाना मिड डे मील स्कीम वर्कर्स यूनियन के जेर एहतमाम कारकुनों को गुज़िश्ता साल जुलाई से वाजिब अदा बिलों की इजराई अमल में लाने के लिए 8 जनवरी को एक रोजा हड़ताल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिला निजामाबाद में मिड डे कारकुनों की जानिब से बच्चों के लिए पकाए गए खाने के बिल तकरीबन 8 करोड़ रुपए फौरी तौर पर फराहम करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अगस्त के माह से ग्रीन चैनल के तहत हर माह बिलों की अदायगी अमल में लाने और टेक्निकी मसाइल होने के एतमाद दिलाते हुए कारकुनान के साथ नाइंसाफी करने का इजहार किया। ताहम इस दिन इनकाद अमल में लाए जाने वाले हड़ताल में जिला इंतजामिया और कारकुनान कसी तादाद में शिरकत करने की अपील की। మరి 8 కోట్ల రూపాయల బకాయి పెట్టుకొని ధరలు ఒకవైపు ప్రభుత్వం వేస్తూనే పెంచినటువంటి ధరలకు అనుగుణంగా వాళ్ళకు బిల్లులు చెల్లించకుండా రేట్లు ఇవ్వకుండా పైపెచ్చు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గుడ్డు పెట్టాలని చెప్పేసి అదే రకంగా కూరగాయలు పెట్టాలని నాణ్యమైన భోజనం పెట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద ఒత్తిడి తీసుకురావడం అనేది దుర్మార్గం। కాబట్టి ప్రభుత్వం కార్మికుల మీద ఏజెన్సీల మీద ఒత్తిడి కంటే ముందు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సినటువంటి బకాయి బిల్లులు చెల్లించాలని ఏఐటీసీగా మేము ప్రభుత్వాన్ని चावल की तरह दीगर फसलों के किसानों को मराहत देने का सीएम रेवंत रेड्डी ने रईतु कमीशन से किया इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि बागबानी फसलों और दालों की काश्तकारी को बढ़ाने के लिए कोशिश करें और फसलों के मुताबादिल व नामियाती काश्तकारी के बारे में किसानों को शऊर बेदारी फराहम करने की ताकीद की। इसके लिए फील्ड सतह पर दौरा किया जाए, जो कि बरोज़े जुमा कमीशन चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और मेंबर गंगाधर KVS रेड्डी भवानी गोपाल रेड्डी ने सीएम से कानून साज कौंसिल के इहाते में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि रियासत में सब्जियों और फलों की काश्तकारी में इजाफा होना चाहिए, रिवायती फसलों की काश्तकारी की हौसला अफजाई की जाए। इस हिस्से के तहत मुकम्मल मंसूबा तैयार करके रिपोर्ट पेश करें। इस पर हुकूमत अमल दरआमद करेंगे। केरला की तरह बागबानी फसलों और कौल किसानों की पॉलिसी को तेलंगाना में रूबे अमल में लाने की कोदंडा रेड्डी से ख्वाहिश की। रियासती हुकूमती मुशीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी से तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन M मोहन रेड्डी ने मुलाकात करते हुए सालों की दी मुबारकबाद। बोधन रुकने असम्बली व हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी से तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने वेलपुर मार्केट कमेटी चेयरमैन मुत्यम रेड्डी के अलावा बालकोंडा मंडल कांग्रेस पार्टी सदर वेंकटेश गौड के हमरा सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाने के साथ साथ साल नौ की मुबारकबाद पेश की और आने वाले दिनों में मजीद कामयाबी हासिल करते हुए जिला निजामाबाद की तरक्की के लिए इनकी क़ियादत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश की। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुतासरा ख़ानदान के अराकीन को 2 लाख का LOC किया हवाले। मोड़तार मंडल के धर्मुरा देहात से ताल्लुक रखने वाली जी गौरी को दिल के दौरे की वजह से तकलीफ में मुब्तला होने के बाइस निम्स हॉस्पिटल में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए शरीक करवाने का मुकामी कायदीन की जानिब से MLA प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए सर्जरी के लिए 2 लाख का LOC मंजूर करवाया, जो कि आज हैदराबाद के क़ियाम गाह में MLA प्रशांत रेड्डी ने मुतासरा खानदान के अरकान को LOC की कॉपी हवाले। इस मौके पर मुतासरा अफराद खानदान की जानिब से MLA प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया गया। साबिक़ा CM KCR की जानिब से असम्बली में PPT देने के बाइस कांग्रेस कायदीन ने शिरकत नहीं की। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी का इजहार। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा कि PPT पार्लियामेंट की रिवायत के खिलाफ है। कांग्रेस कायदीन की जानिब से उस वक्त खत तहरीर करने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी की और इस खत में उत्तम भट्टी विक्रमार्का पद्मावती ने दस्तखत किया है और अब रियासती वज़ीर उत्तम की जानिब से PPT पेश करने पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि अपोजिशन में एक तरह है और इक़्तिदार में आने के बाद इनका तर्ज अमल मुख्तलिफ है। इन्होंने मजीद कहा कि BRS को PPT में वाक़े देने की ख्वाहिश की तो BAC में ऐसे मुस्तरद किया गया था। इन्होंने कहा कि रियासत वज़ीर उत्तम को PPT दिया है तो इन्हें भी एक मौका देने का मुतालबा किया। గాల్లో నుంచి తెచ్చే మరి కొండపోచమ్మ సాగరు మల్లన్న సాగరు కాళేశ్వరంలో భాగమేనా?
దీనికి కూడా సమాధానం చెప్పాలని అడిగారు. ఇట్లా స్ట్రేట్గా సమాధానం చెప్పమని అడిగితే ముఖ్యమంత్రి గారు అవేం సమాధానం చెప్పకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం, కేసీఆర్ గారి చావు కోరుకోవడం, హరీష్ రావు గారి మీద బాడీ షేమింగ్ చేయడం, ఆ అద్దాలు తీసేసి చూస్తే మాడి మసైపోతారు అన్న మాట మాట్లాడడం, ఇట్లా అడ్డగోలుగా గంటన్నర సేపు మాట్లాడడం జరిగింది. ఒకసారి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం మాట్లాడిరో, निजाम सागर नहर के लिए 1500 करोड़ मुख्तस करने का आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने असेंबली के इजलास में की ख्वाहिश। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने निजाम सागर किनाल की जदीदकारी के लिए 1500 करोड़ मुख्तस करने का असेंबली के इजलास में खिताब के दौरान ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि निजाम के दौर में तामीर करदा ये नहर मिट्टी की वजह से खस्ता हालत में तब्दील हुई है, इसलिए मदनपल्ली से फतेहपुर तक बहाल करने का मुतालबा किया और 2 साल कबल चलने वाले मोटर को अब तक तब्दील न करने पर बरहमी जताई। वो जिला निजामाबाद की तरक्की पर हुकूमत को खुसूसी तवज्जो देने का इजहार किया। నిజాం సాగర్ ఒకటే అధ్యక్ష, స్వాతంత్రం రాకముందు నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నది మాటనగానే చెప్తాను. ఒకటే ఒక ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష, స్వాతంత్రం రాకముందు నిజాం కట్టిన ప్రాజెక్టు సగం పూడకపోయింది అధ్యక్ష. డిస్ట్రిబ్యూటర్ కెనాల్స్ కావచ్చు, మెయిన్ కెనాల్స్ కావచ్చు, మొత్తం నాశనమై కూర్చున్నాయి అధ్యక్ష. మేమేమంటలేము అధ్యక్ష, ఇంతకు ముందున్న ప్రభుత్వం సుమారు 89,000 కోట్ల కాళేశ్వరం కట్టండి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు పాలమూరు రంగారెడ్డి కట్టుండి అధ్యక్ష 21,000 కోట్లైనవి, మళ్ళీ 56,000. కానీ అన్ని జిల్లాలు, కానీ మన జిల్లా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లా ఈ తెలంగాణలో అత్యధికంగా నష్టపోయిన జిల్లా ఏంటంటే నిజామాబాద్ జిల్లా మాత్రమే అధ్యక్ష. तेलंगाना में 117 बल्दियात के इंतखाबात के लिए 11 था 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का कवी इम्कान है। तेलंगाना रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माहौल साजगार होता जा रहा है और इंतखाबी अमल के आगाज का मुहूर्त तय हो चुका है। बावसूख ज़राए के मुताबिक रवा माह 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का कवी इम्कान है। इस पेशे रफ्त के साथ ही रियासती हुकूमत और तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में मुद्दत पूरी कर चुकी 117 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात कराने का फैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है। ताहम मुख्तलिफ वजूहात के बाइस अब तक इंतखाबी अमल मौखर होता रहा। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इन बल्दी इदारों में जमहूरी नज्म की बहाली को तरजीह दे रही है। इलेक्शन कमीशन ने 1 जनवरी को मसूदा वोटर फहरिस्त जारी की थी, जिस पर अवाम से एतराजात और तजावीज़ तलब की गई। अब 10 जनवरी को हतमी वोटर फहरिस्त जारी की जाएगी, जिसके फौरन बाद 11 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने के इम्कानात रोशन है। अगर संक्रांति त्यौहार और सरकारी तातीलात के सबब शेड्यूल मुतासिर हुआ तो नोटिफिकेशन 20 जनवरी को जारी किया जा सकता है। दूसरी जानिब महकमे बल्दी नज्म व नस्ख व शहरी तरक्यात इंतखाबी अमल को शिफाफ, पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इंतजामी तैयारियों में मसरूफ़ है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज, इंतखाबी अमले की तैनाती और सिक्योरिटी इंतजामात पर भी तवज्जो दी जा रही है। सियासी हलकों में भी इस ऐलान के बाद सरगर्मियाँ तेज हो गई है और मुख्तलिफ जमातें बल्दियाती इंतखाबात को आइंदा सियासी सिमत के लिए अहम करार दे रही हैं। तवक्को की जा रही है कि नोटिफिकेशन के इजरा के साथ ही इंतखाबी मैदान पूरी तरह गर्म हो जाएगा। कानून साज असेंबली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने अपनी आवाज़ उठाते हुए तेलंगाना शोधा को सहारा देने का किया इजहार। तेलंगाना कानून साज असेंबली में निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने खिताब के दौरान कहा कि तेलंगाना तहरीक में 1200 अफराद शहीद हुए हैं। मौजूदा हुकूमत की जानिब से इनको सहारा न देने पर इन्होंने बरहमी जताई। तेलंगाना शोधा को 250 गज घर के लिए अराजी देने का वादा करने वाली हुकूमत ने बीते हुए 2 साल में कितने अफराद को घर के लिए अराजियाँ दी है, इस ताल्लुक से आगाही फराहम करें और इसके अलावा शोधा के खानदान को मुलाजिमत देने के वादे को हुकूमत ने बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज करने का इजहार किया।
कलियापुर देहात के आंगनवाड़ी सेंटर के पास पानी की सहूलियत फराहम करने के लिए सरपंच भानु चंद्र ने रखा संगे बुनियाद। रेंजल मंडल के कलियापुर देहात में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर के पास पानी की सहूलियत के लिए सरपंच भानु चंद्र ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ वार्ड मेंबरान लवन कुमार, सैयद इस्माइल, लिंगाराम राजू के अलावा दीगर मौजूद थे। అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సందర్శించడం జరిగింది. పిల్లలకు ఏ రకమైన పౌష్టికాహారం ఇస్తున్నారో బాలామృతం సంబంధించిన కానీ విటమిన్ పోషకాలకు సంబంధించిన చర్చడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు మన అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు మరుగుదొడ్డికి వాటికి సంబంధించిన నిధులు 60,000 రూపాయలు మంజూరు చేయడం జరిగింది. పిల్లల సాధించి मानिक बंडार देहात में इंदिरामा इल्लू प्रोसीडिंग कापी मुस्तहिकीन को किए गए हवाले। शहर निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 2 मानिक बंडार देहात में सीएम रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड की जानिब से बाविकात तरीके से शुरू किए गए इंदिरामा इल्लू के दूसरे मरहले की प्रोसीडिंग आर्डर कापी को कांग्रेस पार्टी आरमूर इंचार्ज विनय रेड्डी के अहकामात के मुताबिक जिला निजामाबाद साबिका डीसीसी जनरल सेक्रेटरी जी पुरुषोत्तम के जेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी विलेज सदर टीएन रेड्डी की सदारत में मुस्तहिकीन को प्रोसीडिंग आर्डर की कॉपी को हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल ऑफिसर जयावी, सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, कांग्रेस कायदीन माकलूर मंडल सोसाइटी वाइस चेयरमैन जी शेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के मद्देनजर शहर के बीआरएस पार्टी दफ्तर में साबिका जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव ने पार्टी कायदीन के हमरा इनकी तस्वीर पर पेश की गुले अकीदत। आज सावित्रीबाई फुले की जयंती के मद्देनजर शहर निजामाबाद के बीआरएस पार्टी दफ्तर में साबिका जेडपी चेयरमैन डी विट्ठल राव ने बीआरएस पार्टी जिला कायदीन के हमरा शहर के इलामा गुट्टे में वाक़े पार्टी दफ्तर में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए खिराज अकीदत पेश की। 12 साल 2026 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद की जानिब से इजराई अमल में लाई जाने वाली वोटर फहरिस्त पर बीआरएस पार्टी की तरफ से एतराज करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर को मेमोरेंडम हवाले किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी जिला कायदीन डी शेखर, तिरपा राजू, मतीन ए संतोष, सहादेवु सी राजू के अलावा कृष्णा व दीगर मौजूद थे। అరాచకంకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన వ్యక్తి సావిత్రిబాయి ఫులే. మరి తన భర్త జ్యోతిరావు ఫులేతో అక్కడ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ చెట్టు కింద మరి ఆయనతోని విద్యాభ్యాసం నేర్చిన ఆ రోజులు. మరి దాంతో ఆమె ఉండకుండా అప్పుడు ఆ జమాన్లో ఒక స్త్రీ బయటకు వెళ్ళాలంటే ఎన్నో కష్ట నష్టాలకు వచ్చేది. ఆ టైంలో అగ్రవర్ణాలు కూడా నిందించేవారు. మరి ఆ టైంలో స్త్రీ వంటింటి కుందేలు కావద్దని చెప్పేసి మరి ఆ రోజు 1 జనవరి 1848లో మరి పుణేలో మొదటి పాఠశాల బాలికల పాఠశాల మరి స్థాపించి इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर इनके मुजस्समे पर अवामी नुमाइंदे व हुक्काम ने पेश की गुले अकीदत। तेलंगाना में नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। फिरका वाराना हम आएंगी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह। नवमुंतखब जमात इस्लामी सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन से हुई मुलाकात में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजहार। तेलंगाना में शोधा को सहारा दे, इंतखाबात में दिए गए वादे को पूरा करे। तेलंगाना कानून असम्बली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने फिर दोबारा अपनी आवाज़ उठाई। तेलंगाना में 117 बल्दियात के इंतखाबात के लिए 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का कवी इम्कान। साबिका सीएम केसीआर की जानिब से असम्बली में पीपीटी दिए जाने की वजह से कांग्रेस कायदीन ने शिरकत नहीं की। कानूनी साज असम्बली में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी का इजहार।
चावल की तरह ही दीगर फसलों के किसानों को मराहत दे। कानून असम्बली के अहाते में रैतु कमीशन से सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। इस इजलास में रैतु कमीशन चेयरमैन कोदंडा रेड्डी, मेंबर जी गंगाधर ने की शिरकत। निजाम सागर नहर के लिए 1500 करोड़ रुपए मुख्तस करें। कानून असम्बली में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।